بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن سے گھر میں سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ آج گھر سے دل تنگ پڑا تو کالج کا رخ کر لیا۔ سر جھکائے پچھلے بینچ پر بیٹھی وہ نوٹ بک پر مسلسل کچھ لکھ رہی تھی۔ اسے باقی بچیوں کی طرح وقت گزاری نہیں کرنی تھی، کچھ بن کر اپنے اور اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہونا تھا۔ بڑی سے بڑی سفید چادر ارد گرد اچھے سے اڑے ہوئے وہ اپنے کام میں مگن سی تھی۔ چادر سے اپنی قمیص کو اچھے سے چھپا رکھا تھا۔ غربت نے حالات بہت خراب کرتے رکھے تھے۔ وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ باقی سب لڑکیاں ہنسی خوشی شرارتوں میں مگن تھی۔ اس کا بچپن سے ہی یہی معمول رہا تھا، کیونکہ باہر کی دوستوں پہ زیادہ اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی، وہ اپنی ذات کی طرح اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ایک ماں تھی، وہ بھی بیمار، اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابھی اسکول میں ہی پڑھ رہا تھا۔ کمائی کا کوئی خاص ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اسے دیکھو، میسنی کو ہر وقت پتہ نہیں کیا لکھتی رہتی ہے، ٹیچروں کی خاص توجہ بٹورتی رہتی ہے، ہر وقت ان کی آنکھوں کا تارا بنی رہتی ہے۔ نینا کا دل کیا کہ وہ جا کر چیخ چیخ کر بتا دے، ایک تعلیمی قابلیت کے علاوہ اس کے پاس کچھ ایسا نہیں جس پہ وہ فخر کر سکے۔ ایک لڑکی نے اپنی ساتھی دوست کو کوہنی مارتے ہوئے اس پر طنز کیا، ابھی بھی ضرور ہماری باتیں سن رہی ہوگی تاکہ ٹیچر کو ہماری شکایت لگا سکے۔ وہ سب اس پر طنز پہ طنز کرنے لگی تھیں۔ وہ بنا ان پر دھیان دیے اپنے کام میں مگن رہی کہ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، انہیں ان کا کام کرنے دینا چاہیے۔ آخر کب تک کریں گے؟ آخر کار چپ تو ہونا ہی پڑے گا۔ ان کو صفائی دینے میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی، اسے یہ وقت بہت اچھے کام میں لگانا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی وہ پھر سے بہت توجہ سے نوٹ بک پر کچھ لکھنے لگی تھی۔ گھر جانے کے لیے پھر سے انرجی لگنی تھی، لیکن صبح سے کچھ پیٹ میں جو نہیں تھا۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں میں چھالے سے پڑ گئے تھے۔ کالج کی چھٹی کی مخصوص گھنٹی بجنے پر سب لڑکیاں بیگ اٹھاتی ہوئی باہر کی طرف دوڑی تھیں، کیونکہ ان کے باپ نے شاہی سواری جو بیچ رکھی تھی اور ان کے گھر پیٹ بھرنے لائق کھانا بھی بنتا تھا۔ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کے لیے دکھ ہونے لگا۔ وہ بیچارہ اسکول سے آ کر بھوکا کیسے رہے گا؟ میڈم کا کالج کے بعد آپ کا دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کا موڈ ہے؟ ایک لڑکی ہنستی ہوئی باہر کو نکل گئی۔ کلاس روم خالی ہونے کے بعد وہ گہرا سانس لیتی ہوئی اٹھی، بھیگی آنکھوں کو صاف کیا، کیونکہ ماں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رونے لگ جایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، نینا میری رونے کے لیے نہیں بنی، بلکہ محلوں کی شہزادی ہے۔ آپ کی نینا ہار چکی ہے بابا، آپ نے میری کاندھوں پر بہت بوجھ ڈال دیا ہے۔ دل میں بابا سے مخاطب ہوئی، ایسے لگتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا کر بھی اس دنیا کے بہت قریب ہیں۔ بیگ کندھے پر رکھ کر وہ دھیمے دھیمے قدموں سے باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد دنیا کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ بھوک سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ آخر 2 دن سے اس نے پانی اور قہوے پر گزارا تھا۔ درد تو ہونا ہی تھا، اب پیروں میں جان نہیں تھی، اور ماں سے جھوٹ بھی بولنا تھا کہ اس نے آج کالج کی کینٹین سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ وہ کہنے لگی، کسی طرح روٹی کا انتظام ہو جائے تاکہ وہ ماں اور بھائی سے مزید جھوٹ نہ بولے۔ اس کا باپ ایک نجی کمپنی میں نوکری کرتا تھا جس سے اچھی آمدن آ جاتی تھی۔ دونوں بہن بھائی اپنی پڑھائی مکمل کر رہے تھے تاکہ پڑھ لکھ کر باپ کا نام روشن کر سکے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یتیمی ان کے دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد حالات کافی خراب ہو چکے تھے اور نوبت فاقوں پہ آ گئی۔ جب بھی گھر میں نوکری کی بات کرتی تو اس کی ماں اسے ٹال دیا کرتی تھی، لیکن اب اپنی ماں اور بھائی کے لیے کہ سب بہت ضروری تھا۔ بلیک پراڈو اپنی مخصوص رفتار سے ایک بڑے سے محل میں آ کر رکی تھی۔ وہ محل کسی نے بہت محبت سے سجایا تھا، لیکن اندر سے ان کے دل اتنے ہی کھوکھلے تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی 3 4 ملازم بھاگتے ہوئے گاڑی کے نزدیک آئے تھے۔ ان کو جی حضوری کے پیسے ملتے تھے، تبھی تو بیچارے گرمی کی اس تپش میں بھی پروٹوکول کے لیے کھڑے تھے۔ گاڑی کا ڈور اشرف بابا احترام سے کھول کر وہ سب پیچھے ہوئے تھے۔ وہ اس نک بڑے
साहिब के खास मुलाजिम थे, जिसने कम वक्त में अपने बाप की बिजनेस को मजीद बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। अंदर से निकलती शख्सियत को देखकर पहली बार कोई भी साकत रह जाता था। हनान शाह का हुस्न बेमिसाल था। इसने सब नए नक्श अपनी तुर्कश मांस के चुराए थे। गहरी नीली आंखों में एक सर्द पन लिए वो बाहर आया था। मगरूर खड़ी नाक पर हमा वक्त गुस्सा ही रहता था। सहर अंगेज शख्सियत वाला वो इंसान पूरे धड़ल्ले से किसी का दिल भी धड़का सकता था। बाप शहर का एमएनए था और खुद इसने कंपनी को ऊपर की बुलंदियों तक पहुंचाकर पैसों की रेल पेल कर दी थी। दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा था। सब मुलाजिम हाथ बांधे बहुत एहतराम से इसे सलाम पेश कर रहे थे। मालूम नहीं मीडिया को मेरे आने का पता कैसे लग जाता है। वो कोफत में मुब्तला हुआ। वो झुंझला कर सर हिलाता हुआ बड़े से दरवाजे के सामने रुका। इसे मीडिया और गरीब लोगों से मिलना बहुत कोफत में मुब्तला कर देता था। वो बहुत बड़े डील क्रैक करके वापस अपने वतन को लौटा था, लेकिन न जाने किसने इसके आने की खबर मीडिया तक पहुंचा दी थी। अपने बाप को कहा भी था कि सियासत से दूर रहिए, क्योंकि ये गरीब अपने हालात खुद ही बदलना नहीं चाहते हैं। तभी तो मीडिया के खबरी बंदे दरवाजे के बाहर खड़े थे। किसी तरह जोर जबरदस्ती से अंदर आ जाना चाहती थी। हमारे लाल का चेहरा किसने लाल कर दिया? वो हल्का सा मुस्कुराया। अपने बाप के सामने माथे के बल गायब किए, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए वो अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते थे। वैसे भी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इनके लिए अहमियत कहीं रखते थे। ये साहिब कितने खूबसूरत हैं। जिनकी किस्मत खुलेगी वो बहुत लकी होगी। इसके गालों पर पड़ते घड़े तो किसी को भी घायल कर सकते थे। मैंने आपको कहा था सियासत का पीछा आप छोड़ दें, क्योंकि हर जगह आपकी आवाम मेरे पीछे लग जाती है। इसका ज्यादातर वक्त मुल्क से बाहर ही गुजरा था, इसलिए यहाँ की मोहब्बत इसके दिल में पैदा नहीं हो सकी थी। अपने बाप के गिले वो किसी बच्चे की तरह लगाता था। अपनी माँ की अलैदगी के बाद माँ और बाप दोनों का बिजनेस इसके कांधों पे आ गया था। तभी तो अल्लाह ने नखरा बिरज कर दिया था। मुख्तार शाह साहब अपने बेटे की शिकायत पर हंस दिए। हर बाप की तरह इन्हें अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। ये हमारी अपनी आवाम है। कभी छोटे मोटे मसले आती है, लेकिन मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा मेरे बच्चे को तंग ना करें। वो आहिस्ता से सर हिला गया, किसी छोटे बच्चे की तरह। वो इसे कायल कर रहे थे। वो जितना मगरूर था, इसके पीछे बहुत से चेहरों की हसद और नफरत मौजूद थी। यहाँ के लोगों से इसने बहुत धोखा खाया था। बाकी किसी के सामने कम ही मुस्कुराता था। मुख्तार शाह के जाने के बाद वो स्पाट तासुरात चेहरे पर लिए अपने कमरे की तरफ तेजी कदमों से बढ़ रहा था। बाकी सब मुलाजमीन खाने बनाने की तैयारियों में लग चुके थे, क्योंकि इन्हें आज हर चीज हनान शाह की पसंद की बनानी थी। हनान शाह का कोई भाई बहन नहीं था। शुरू से इसने अलग थलग जिंदगी गुजारी थी। दोस्तों पर ज्यादा इतबार अब रहा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने बाप के कहने पर इसे छोटी सी दावत में शरीक होना था, जिसकी तैयारियां नौकर करने में मसरूफ थे। धीरे धीरे वो अपने बेटे को सियासत की तरफ लाना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि सियासत के तालाब में एक बार मछली उतर जाए तो यही की होकर रह जाती है। अपनी तुर्कश बीवी से इन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। दोनों ने खानदान वालों के खिलाफ जाकर मनपसंद शादी की थी। हनान के आ जाने से जैसे इनकी जिंदगी में जन्नत सी लौट आई थी। इनके दिल में हमेशा से खलश सी रही कि काश वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा लेते। कमरे में आकर वो फिर से सुकून की नींद सो चुका था। मुख्तार शाह आज भी अपनी बीवी के हसार से निकल नहीं पाए थे। तभी अपने बेटे को सीने से लगाकर बीवी की खुशबू महसूस करते थे। दोनों के दरमियान तलाक सिर्फ इस वजह से हुई थी कि इनकी बीवी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती थी। आपको मुझसे क्या इतनी भी मोहब्बत नहीं कि आप सियासत छोड़ दें? इन बच्चों के पैर में जब मैं जूता नहीं देखती तो दुख होता है। इसके जवाब दे हम होंगे। रोज़े क़यामत किस तरह हम खड़े हो सकेंगे? खुदा का खौफ रखने वाली खातून थीं, तब ही डरती थीं, लेकिन तब जवानी में इनका खौफ
जोश मारने लगा था। इन दोनों ने खामोशी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इनकी अलहदगी से खानदान भर में काफ़ी खुशी का माहौल था। हर कोई ये समझता था कि मुख्तार शाह जल्द ही दूसरी शादी कर लेंगे। हन्नान शाह ने अपनी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा तुर्कश में गुजारा था। कभी कभार बाप से मिलने को आ जाया करता था। अब इनकी बिजनेस की भाग दौड़ भी इसने संभाल रखी थी। इस घर में हमेशा से एक मालकिन की कमी थी और वो चाहते थे कि इनकी बीवी दोबारा से लौट आए, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। कॉलेज से पोंक सीटते जैसे ये बच्ची घर पहुंची तो माँ की खांसी की आवाज़ इसे बाहर तक सुनाई दे रही थी। पानी लेने गिलास में पहुंची तो किचन में बड़े खाली बर्तन इसे रुला गए थे। कितने दिनों से इन बर्तनों में माँ के हाथ का लजीज खाना नहीं बना था। बाप के जाने के बाद हर दिन नया इम्तहान लाता था। सच कहते हैं, भूख से बड़ा कोई अजाब नहीं होता। पेट की आग कभी बुझ नहीं सकती है। मेरी रानी बेटी कॉलेज से आ गई है। नैना, बच्चे कहवा ही बना दो अगर कहवे का सामान है, तो वरना पानी ही हल्का सा गर्म कर दो। बेचारी की खांसी पीछा कब छोड़ेगी। वो आंसू जल्दी से साफ करती। अंदर से आती अम्मा की पुकार पर भारी कदमों से कहवे का सामान टटोलने लगी, लेकिन खाली पुड़े जा रहे। इसे खून के आंसू रुला गए। क्या कहवे की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, जिससे इसके गले को कुछ आराम मिलता है। अल्लाह, हमारा इम्तहान कब खत्म होगा। खांसी की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। अम्मा, 5 मिनट इंतज़ार करें, मैं बनाती हूँ। हाथ मुंह धो लूँ, किचन से ही आवाज़ लगाती। वो सर पे फिर से चादर ओढ़ने लगी। छोटे के आने से पहले कहीं से सामान भी लाना था, वरना वो छोटा शैतान सच बोलकर माँ को भी और साथ परेशान कर लेता। घर बाहर के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी। अल्लाह तो ही इंतजाम कर दे, दुआ ही काम आ सकती थी। काली चादर को अच्छे से ओढ़े वो चचा की दुकान पर आई। इनका नैना के बाप के से काफी पुराना याराना था। चचा अशरफ तो अच्छे थे, लेकिन इनका बेटा वो एक नंबर का घटिया इंसान था। लड़कियों के नंबर लेकर सारा दिन बात करता रहता था। बेवजह मोहल्ले की लड़कियों को ताड़ा करता था। बाप सारा दिन बड़े साहिबों की जी हजूरी में लगा देता था और बेटा इनके पैसों को हराम समझ बैठा था। दुकान में चचा की बजाय इनके बेटे को देखकर इसके कदम भारी हुए थे। दिल में मजीद दुआएं पढ़ ली कि अल्लाह की इसकी हिफाजत करे। यहाँ से वापस मुड़ने के लिए नहीं आई थी, फिर भी कदम घसीटती हुई वो दुकान के दरवाजे के पास आई। मुंह में छालिया, हाथों में बैंड और ऐसी कोई तेज खुशबू थी कि किसी गली का गुंडा लग रहा था। वो किसी गाहक को सौदा पकड़ाता। इसे देखकर खबासत से मुस्कुराया। इस चुपचाप सी गुड़िया का शिकार तो अभी बाकी था। सारी उम्र बाप ने बड़ा घर की चार दीवारी में संभाल कर रखा था। किस काम से सुना हुआ है नैना जी। इसके लहजे की लचक वो लरसी थी। दिल पे तेजी से धक धक करने लगा। फिर चची अम्मी का ख्याल करती हुई वो अंदर आई कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो चीख कर चची को बुला लेगी। भाई, मुझे कहवे का सामान दे दें, कभी चावल भी चाहिए थे। मैं कल या परसों आपको पैसे लौटा दूंगी। पेट से आती आवाज़ों से इसे इस लोफर इंसान के सामने अच्छा खासा शर्मिंदा करवा दिया था। सर झुकाए वो नरम लहजे में बोली थी। वो कमीन की मुस्कुराहट से इसके सरापे को देखता हंसता। वो लड़की हद से ज्यादा कमजोर थी। बाप के गुजरने के बाद माँ भी बिस्तर पे थी। आम सी शक्ल, बिगड़े बाल, जो चादर से आधे बाहर निकले हुए थे। अगर कुछ भी हो भी जाता तो नैना को बचाने वाला कोई ना था। किसने इसकी आखिर को खबर लेनी थी। बाप भी आज मालिक की पार्टी में था। मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके नजदीक आता वो जरा रोब से बोला कि शायद वो इसकी बातों में आ जाती। वो भी माँ के कहवे की खातर खड़ी रही थी। आंखें नीचे वो जब्त के घूंट भरती इसके अगले जुमले का इंतजार करने लगी। खुद की जिस्म को बीच कर माँ का पेट भर जाए और भाई की स्कूल की फीस भी अदा हो जाएगी। तुम्हें मुझसे थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा। और मेरे बाप को बताने की कोशिश भी की तो पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेरी बनो। हिम्मत ऐसी पैदा हुई कि हाथ बढ़ाकर इसको चादर को छूने लगा। वो इसके हाथ की पुश्त पर उंगलियां फेरता, कमीनगी से बोलता, फिर से हदें पार करने लगा था। नैना का दिल लर्ज गया था और दिल किया यही जमीन फटे और वो समा जाए। वो खौफ से पीछे हटती हुई जाने ही लगी थी। इसके अंदर मजीद सहने की हिम्मत नहीं थी।
जब सामने से चचा को आते देखकर वो रुकी। वो लड़का भी घबरा गया था। चचा अपने बेटे की हरकतों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे। फिर बेचारी के चेहरे के रंग ढंग ही इन जैसे तजर्बाकार इंसान को समझाने को बहुत थे। वो बुखलाकर जल्दी से काउंटर के पीछे हुआ और दिल में एक गाली खुद को निकाली कि इस लड़की की किस्मत पे अफसोस था। क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए था? चचा ने इसकी सुर्ख आंखों को देखकर तशवीश से पूछा। अपने जिगरी दोस्त की मौत का फिर से दिल में अफसोस हुआ। चचा, कहवे का सामान चाहिए था, अब्बा को बनाकर देना है, क्योंकि इनकी खांसी को ऐसे आराम नहीं आ रहा। इसके लरजते लहजे पर चचा ने अफसोस से इस 20 साल की लड़की को देखा, इसके सर पर हाथ रखा, फिर अपने बेटे को तनदही से घूरा, जैसे खबरदार करना चाह रहे हो। चच्ची को इनकी रहमदिली एक आंख नहीं बाती थी, क्योंकि इनके बकौल ये गरीब लोग इनके ठेके में नहीं हैं। वो बाप की नज़रों से बुखलाते हुए हिसाबों किताब की कापी लेकर बैठ गया था, जैसे बहुत हिसाब आता हो। आज साहब के घर बड़ी पार्टी थी, लेकिन एमएनए के बेटे का मूड ना हुआ तो कैंसिल कर दी। बहुत सारा खाना ज़ाया होना था, इसलिए अच्छा खासा सामान ले आया। तुम भी रुको बेटा, मैं देता हूँ। इसके सर पर हाथ रखकर वो कहवे का सामान शॉपर में डालने लगा। साथ ही दो बड़े खुशबूदार खाने के शॉपर भी बांध दिए और आखिर में डिब्बे से बिस्किट भी इसे पकड़ा दिया कि खुद तो सफ़ेद पोश घराने की बच्ची ने शर्म से कुछ नहीं मांगना था। चचा, मुझे कहवे का सामान चाहिए, बिस्किट तो मैंने नहीं मांगे, और खाने के लिए बहुत शुक्रिया, वो धीमे लहजे में बोलती अशरफ साहब को बड़ी प्यारी लगी। अगर इनका बेटा किसी काम का होता तो इसे अपने घर की बहू बनाकर ले आते। बेटा, ये मैं अपनी बेटी को खाने के लिए दे रहा हूँ, और इसके पैसे भी मैं नहीं लिखूंगा, तुम खा लेना। वैसे भी अपने बाप के साथ भी तो छोटे होते आया करती थी। चचा ने इसके चेहरे पर भूख के साए देख लिए थे, जानते थे कि वो लेने से हिचकिचा रही है, और दुकान पर मेरी मौजूदगी में आया करो। अगर मैं यहाँ ना हूँ तो चच्ची के पास चली जाना। इनकी एहतियात पे आंखें सी भीग गई थी। चचा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल घर के हालात बेहतर नहीं, मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है। अगर तुम अपने साहब से कहकर किसी नौकरी का इंतज़ाम करो तो एहसान होगा। पहली बार किसी के आगे चोली फैला रही थी। बेटा, तुम तो पढ़ने में कितनी अच्छी हो, फिर मैं हूं ना, जितना सौदा चाहे ले जाना। इतनी सी उम्र में नौकरी की जलालत भला कैसे बर्दाश्त करेगी? चचा, मुझे आपका सहारा है, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, मुझे मेरा बोझ उठाने दें, वो धीमे से बोली। तो किसी मसलहत के तहत सर हिला दिया। मालिक से खुद बात करेंगे कि काम की बजाय स्कॉलरशिप के नाम पे कुछ रकम दे दी जाए, तो बच्ची का माना कुछ गुजारा हो जाए। पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। नैना पुरस्कृत सी होती हुई गली में आते ही इसने वो बिस्किट का पैकेट खोला। माँ बाप का ख्याल मुंह की तरफ बढ़ाया। बिस्किट वही साकत रह गया था। पहले गरम खाना इन दोनों के पेट में जाएगा, तब ही वो कुछ खा सकेगी। अम्मी बुआई की भूख का एहसास इसी आंखें मीचने पर मजबूर कर गया था। लबो लहजा सख्ती से पीछे वो बिस्किट पैकेट में डालकर घर में आ गई। तेजी से कदमों में जान आई। चूल्हे पर पानी रखकर वो कहवा तैयार करने लगी थी। माँ को जाकर कुछ हौसला देकर आई कि थोड़ी ही देर में कहवे के साथ खाने का सामान भी आने लगा है, क्योंकि चचाई से घर में ही अपने साहब की दावत का अच्छा खासा सामान दे गए हैं। 2-3 कप कहवा बनाकर साथ प्लेट में खाना भी डालकर ले आई थी। बिस्किट को आटे के डिब्बे में रख दिया था कि किसी मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। ये खाना तो वो मुश्किल रात तक चलना था। कल दोपहर के खाने का जुगाड़ भी हो जाता। मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ़ कर देना। पहले तो आते साथ खाने का शोर मचाया करती थी, अब देख कैसी भूखे पेट हमारे लिए इंतज़ाम कर रही है। माँ की आंखों से आंसू रवां हो गए थे। अपनी बेटी की हालत पे इसे देखी नहीं जाती थी। मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूँ। अगर आपने दोबारा इससे बात की तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। देखिए छोटा भी भूखे पेट काम में लगा है। इसका छोटा भाई नोटबुक पर झुका होमवर्क कर रहा था। वो दोनों भाई बहन गवर्नमेंट अदारों में पढ़ रहे थे। खाना इन दोनों माँ
بیٹے کے سامنے رکھ گئی تھی، لیکن چھوٹے نے پلیٹ درمیان میں رکھی اور اسے بھی کھانے کا اشارہ کیا۔ نینا کی ماں نے اس کا چہرہ دیکھا جو پیلا پڑ چکا تھا۔ انہیں دل میں درد سا اٹھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اللہ سے کتنی دعائیں مانگ کر بیٹی لی تھی، ان کے شوہر کو کتنی پیاری تھی جو خود بھوکی رہ لیتی ہے، انہیں پیٹ پر کھانا کھانے کے چکر میں دن بھر کئی جھوٹ بول جاتی ہے یہ لڑکی، اور آج وہ بھوک و افلاس سے دن بہ دن مرجھائے جا رہی تھی۔ انہوں نے نوالا بنا کر اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ آپ ہی منہ کھول لیں، کیونکہ اماں کبھی کبھی مہربان ہوتی ہیں۔ انہیں ضبط سے دیکھتی وہ نفی میں سر ہلاتی ہنس گئی۔ منہ کھول کر نوالا حلق میں لیا تو پیٹ کو سکون ملا۔ بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ آرام سے دونوں بچوں کو کھانا کھلانے لگی، لیکن اس دوران خود کے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں ڈالا تھا۔ کھا لو میری بچی، میں جانتی ہوں تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ کھا لو میری بچی، آپ نے بھی تو کیفا پہ گزارا کیا ہے، چلے خود بھی نوالا کھلائیں، ابھی کھانا پڑیں گے۔ کہتے ہی وہ رو دی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو کھلانے لگیں۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں اور بہن کو روتا دیکھ کر اداس ہو گیا تھا۔ نہ جانے کے دن کب بدلیں گے، کیا ہم ساری زندگی یوں ہی غریب رہیں گے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ پوچھ رہا تھا، ایسا کیوں بولتے ہو؟ کیا ابا کی باتیں بھول چکے ہو؟ بہت جلد تم دیکھنا ہم پھر سے خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ ہم پڑھ لکھ کر ابا کا نام روشن کریں گے، کسی بڑی پوسٹ پہ نوکری کریں گے۔ میرے پیارے بھائی، بس خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اگر وہ دکھ والے دن لاتا ہے تو خوشیوں بھرے دن بھی جلد لائے گا۔ بس صبر کرنا اور زندگی میں بس خوشیاں رہیں تو جنت کیوں دی جائے؟ جنت اس کا انعام کی صورت میں دی جاتی ہے۔ جو مشکلات ہم صبر و شکر کے ساتھ دنیا میں کاٹتے ہیں۔ اپنے بھائی کا سر شفقت سے چومتے ہوئے بار آئے ہوئے لہجے میں کہا۔ دونوں بہن بھائی ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھے۔ انہیں لوگوں کے رویے اور گھر کے حالات میں بہت بڑا بنا دیا تھا۔ ماں اپنے بچوں کو ضبط سے دیکھ رہی تھی اور دل میں دعا مانگی کہ اے اللہ ان کے راستے ہموار کر دے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ نینا کو پوری امید تھی کہ صبح چچا کے ساتھ جا کر اسے کوئی نہ کوئی ضرور کام مل جائے گا۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بھائی کو بہت اچھے سے پڑھائے گی۔ ماں دونوں اسے دیکھتی مسکرا دیں، لیکن اس مسکراہٹ میں چھپا درد کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اشرف چچا سے بات کی ہے کہ وہ مجھے اپنے بڑے صاحب سے ایک بار ملوا دیں، کچھ اپنے مطلب کا کام کر لیا کروں گی، گھر میں تھوڑی بہت آمدنی آئے گی، تب ہی آپ کا علاج بھی کروا سکتی ہوں۔ لیکن بچے تمہاری تو پڑھائی بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی، جانتی ہو نا تمہارے ابا کا کتنا بڑا خواب تھا کہ تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤ۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن جب تک وہ دوسرے کی راہ تکتے گئے، محلے والے انہیں ختم وغیرہ پر ہی کوئی کھانے کی چیز بیچتے تھے، ورنہ کبھی کسی نے جھوٹے منہ بھی انہیں کھانے یا پیسوں کی صلاح نہیں ماری تھی۔ چچا اشرف جتنے مرضی اچھے سہی، لیکن چچی کا رویہ ان کے ساتھ کافی خراب تھا۔ امی چچا کہہ رہے تھے کہ ضرور وہ کام مجھے شام میں ہی دیا کریں گے تاکہ پڑھائی کے ساتھ میں اپنے گھر کا گزارا بھی چلا سکوں۔ ویسے تو آج کل کی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ یتیم اور غریب بچوں کی کفالت کرے، لیکن یہ حضرت عمر کا دور نہیں جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ماں نے دل سے دعا دی کہ اللہ اس کے کام بنا دے، ان کی بچیوں کو بری نظروں میں نہ آنا پڑے۔ صبح وہ خود چچا اشرف سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ اگلی صبح نینا کالج جانے کے بجائے چچا کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اگر کہیں سے آمدنی کا انتظام ہو جاتا تو گھر کی ضروری اشیاء خرید لیتی۔ ماں نے نہ جانے کتنی دعائیں پڑھ کر اس بوری صورت پر پھونک چکی تھیں، اللہ ان کی بچی کو معاشرے کی بری نظر سے محفوظ ہی رکھے۔ چچا کے آتے ہی ماں نے پھر سے سفارش کی کہ اگر کوئی بھاگ دوڑ کا کام ہو تو بے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ہمراہ وہ ایک عالیشان محل کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھیں۔ چچا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دولت کو تقسیم کرنے میں اللہ نے اتنا تضاد کیوں رکھا؟ کسی کو تو اتنا دے دیا کہ نوٹ گنتے تک کی فرصت نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا، یہی تو اصل امتحان ہے
ये दौलत 4 दिन की रंगीनी है। जितनी जिंदगी इन लोगों की तुम्हें रंगीन नजर आ रही है, किसी को अल्लाह दौलत देकर आजमाता है तो किसी के हाथ से अपनी दौलत छीन लेने के बाद इसे आजमाता है। इतना ये लोग दिल से खुश नहीं होते, कुछ की कमी तो फिर रह ही जाती है। मुख्तार शाह किसी दौरे पर शहर से बाहर गए हुए थे। अब चचा को समझ ना आया कि हनान शाह से मिलवाना ठीक भी साबित होगा या नहीं, क्योंकि छोटे साहब का सियासत की तरफ ज्यादा रुझान नहीं था। वो तो गरीबों से मिलने से घबराते थे। बेटा, बड़े साहब तो आज किसी सिलसिले में दौरे पड़ गए हैं और ना जाने वो कितने दिनों बाद वापस लौटेंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोटे साहब से मिलवा देता हूँ। चचा, आप चाहें मुझे किसी से भी मिलवा दें, मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है। अशरफ चचा को भी नौकरी किसी जलसे के दौरान ही मिली थी, जहां रोते हुए मीडिया के ऊपर आ गए थे। रातों रात ही मुख्तार शाह ने अपनी इज्जत बचाने को इन्हें अच्छी खासी नौकरी दे दी थी। बाद में ईमानदारी से नौकरी का दुरानिया खुद ही बढ़ता चला गया। इसे बाहर खड़ा रहने का इशारा करते हुए वो खुद अंदर की जानिब चले गए थे। छोटे साहब इस वक्त नाश्ता नोश फरमा रहे थे। इस आलीशान महल के एक तरफ हनान शाह ने अपना ऑफिस कमरा सजा रखा था। साहिब, आपसे कुछ दरख्वास्त करनी थी। दरअसल मेरे बहुत ही अजीज दोस्त की बेटी नौकरी की तलाश में है, यहाँ आई है। वैसे मैं बड़े साहिब से मिलवाता, लेकिन आप अगर इसको नौकरी दे दें। अपने बाप की इस दरिया दिली पर इससे फिर से गुस्सा आया था। अशरफ चचा पुराने मुलाजिम ना होते तो शायद इन्हें 4 बातें सुनाकर यहाँ से बेच देता। कुछ सोचकर सर हिलाते हुए नाश्ता करने लगा। आप इसे कुछ देर इंतजार करवाएं, मेरे नाश्ते के बाद ऑफिस में भेज दीजिएगा। अशरफ चचा के लिए यही काफी था कि उन्होंने मिलने के लिए हामी भर ली है। नैना को बेवजह का गुस्सा आ रहा था। ये लोग इन्हीं के पैसों का खाकर इतना नखरा क्यों दिखाते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर को बुलावा आया था। हनान शाह गरीबों से मिलना पसंद ही नहीं करता था। हनान अपने ऑफिस की फाइल को देखने में मसरूफ था। सर, एक बार मेरी बात सुन लें प्लीज। हनान शाह ने पलट कर इस लड़के को देखा तो ठटक गया। वो काफी देर से इसके फारिग होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये आदमी शायद सिर्फ अपने वक़्त की अहमियत जानता है, दूसरों का वक़्त तो इसके लिए अहमियत नहीं रखता। 17 साल का उम्र, वो बड़ा ही हसीन और मासूम थी। वो जो किसी गरीब को देखता नहीं था, इस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। सबसे खास इसके चेहरे पर मासूमियत थी। हन्नान शाह को कुछ वक़्त के लिए अपना आप भूलता हुआ महसूस हुआ। आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन अभी ऑफिस के किसी ज़रूरी काम से मुझे जाना है। आपकी बात सिर्फ एक ही सूरत में सुन सकता हूँ कि अगर आप गाड़ी में बैठकर आराम से मुझे अपनी बात बता दें। घर के नज़दीक किसी स्टॉप पर ड्राइवर को कहूँगा कि आपको छोड़ दे। इसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि इतनी लंबी बात तो वो कभी भी किसी से नहीं करता था। जिंदगी में पहली बार इसने किसी से माजरत की होगी। नैना के पास इसके सिवा कुछ भी रास्ता नहीं था। तब ही जल्दी से इसके पीछे भागने लगी, क्योंकि वो शख्स अपनी तेजी से चल रहा था कि जी बताएं, आपको किस सिलसिले में मुझसे मिलना था। अपने बाप के चले जाने के बाद अब आपकी कफालत मेरे कंधों पर आ गई और मैं कमाकर अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से नंबर अव्वल आती हूँ। अगर आप मुझे ऑफिस में किसी पोस्ट पर रख लेंगे तो मैं शायद आपके किसी काम आ सकूं। इसके बाद हनान शाह का दिल क्या वो कहका लगा दे, भला इतनी सी छोटी कम उम्र लड़की इसके ऑफिस के किस काम आ सकती है। आपकी पढ़ाई भी तो मुझे मैट्रिक से ज़्यादा की नहीं लगती, भला मैं आपको वहाँ किस काम के सिलसिले में रखूँगा। चचा अशरफ इन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे और इन्हें दिल में कहीं ना कहीं इत्मीनान भी था कि बच्ची इनकी नज़रों के सामने है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हो जाऊंगी। हन्नान शाह की नज़रें बस इसके चेहरे के गिर्द ही थीं। ठीक है, कॉलेज के बाद आप मेरे लिए पर्सनल सेक्रेटरी का काम करेंगी। रोज़ आपको ड्राइवर घर से पिक एंड ड्रॉप दे देगा। इसके साथ ही इसने चेक
बुक निकाल कर कुछ अमाउंट इसके ऊपर दर्ज कर दी थी। जानता था कि इस तबके के लोग अपना खाना पानी कैसे पूरा करते हैं। इस छोटी सी लड़की में कुछ तो ऐसा खास था कि तुर्कश शहजादा नरम पड़ गया। मोहते के मुताबिक वो हर शाम शाहबला में जाती थी। इसकी वालदा पहले तो काफ़ी परेशान थी, लेकिन धीरे धीरे इनका दिल पुरस्कून होने लगा, क्योंकि नैना ने इन्हें बताया था कि हनान शाह बिल्कुल भी बाकी मर्दों जैसा नहीं है। वो औरत को इज्जत देता है, अच्छे से जानता है। न जाने क्यों ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफ से ही नहीं, बल्कि दोनों तरफ से परवान चढ़ रही थी। मिस नैना, आपका पढ़ाई के बाद क्या इरादा है? अपने भाई और अम्मा के लिए अच्छा सा घर बनाऊंगी, फिर इनकी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। वो लड़की शायद इसी वजह से इतनी खास थी कि वो अपने से पहले वो दूसरों का सोचती थी। आपका अपने लिए करने का क्या इरादा है? सर, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। जब अम्मा और भाई खुश होंगे तो अपने लिए जिंदगी में इसने कभी कुछ नहीं मांगा था। क्या आपका शादी करने का इरादा नहीं है? बात को घुमा फिरा कर करने की बजाय सीधी बात की। जी। दिल तेजी से धक धक करने लगा। क्या दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती हैं? कहीं इसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा? आपके चेहरे की हवाइयां तो इस कदर उठ चुकी हैं कि जैसे मैं कोई ड्राई कोला हूँ। नहीं, वो आपकी और मेरी क्लास में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल से शादी के बाद मर्द औरत की क्लास से नहीं, बल्कि औरत मर्द की पहचान से जानी जाती है। वो बड़ी तफसीली अंदाज में आज इसका मुआयना कर रहा था। छोटी सी लड़की बात करने के अंदाज से लगता था कि तजुर्बे में काफी माहिर है। सर से कभी उतरा दुपट्टा नहीं देखा था। इस लड़की की मुशाबहत इसकी माँ से बहुत थी। आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। धीरे से सर हिला गया, क्योंकि अपने माँ या बाप को फिलहाल वो बताने की पोजीशन में नहीं था। दोनों इसका रिश्ता अपने सर्कल के लोगों में कर चुके थे। मुख्तार शाह का मानना था कि इसे अब पाकिस्तान में रहना चाहिए, इसलिए वो अपने खानदान की लड़की से रिश्ता बगैर पूछे तय कर दिया था। इसकी माँ ने भी इमोशनल ब्लैकमेल करके मामू की बेटी से मंगनी का कह दिया। इन दोनों के दरमियान वो पिस कर रह चुका था। जिंदगी में पहली बार इसे कोई लड़की पसंद आई थी। निकाह की रसूमात काफी सादगी से हुई थी। चचा अशरफ अपने घर वालों के साथ इस निकाह के मौका पर शामिल हुए थे, जबकि नैना का नन्हा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक से इसका मकाम बदल गया था। निकाह मुबारक हो मिसिस। धीरे से इसके कान में सरगोशी की। वो मजीद खुद में सिमट गई। इसके माथे पर एक भी सलवट ना आई थी, बल्कि मेहमानों से बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा था। नैना की माँ अपनी बेटी का बार बार माथा चूमने में लगी हुई थी। रुखसती के मराहल तय पाए, लेकिन इस बार वो सिर्फ अकेली ही नहीं, बल्कि इसकी माँ और छोटा भाई भी साथ ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हन्ना शाह ने सारा तो ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत वजाहत दे दी थी। आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी बेटी का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा। कभी भी इसको किसी चीज़ की कमी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इसकी पेशानी से चादर को ठीक करते हुए नैना की माँ को दिलासा दिया। छोटा भाई तो ऐसे खुश हो रहा था। कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। अभी किस्मत पर यकीन पाना मुश्किल हो रहा था कि घर किसका है। आपको ऐसा क्या नजर आया कि मुझसे निकाह कर लिया? वो वाकई ही जानना चाहती थी कि ऐसा क्या खास था कि उन्होंने अपनी सर्कल की लड़कियों को छोड़कर इससे शादी कर ली। तुम्हारा इत्तेमाद और तुम्हारी हया जो मुझे बहुत कीमती है। मैं एक ऐसी हयादार और औरत का शौहर हूँ जो सीना उठाकर फखर से बता सकता है, और आज से मेरी हर चीज़ हमारी है। ये घर हमारा है। तुम्हारी हैसियत अब वो है जो मेरी पहचान है। धीरे से इसकी पहचानी चूमते हुए वो इसके मज़ीद नज़दीक हुआ। नैना भी इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मजबूत सहारे की ज़रूरत तो हर औरत को होती है। अब वो इसका महरम था, इसका शौहर था। इसे नाराज़ करके फरिश्तों से लानत तो नहीं खानी थी। एक नस्ली मर्द, और इस बात पर वो बहुत खुश होता है कि इसकी बीवी इसके नाम से पहचानी जाए। हेलो, कौन बात कर रहा होगा वो नहीं जानती, क्योंकि
लेकिन बस अपने शौहर की आवाज़ सुनना था कि आंखों से आंसू झरझर मोतियों की तरह बहने लगे। अच्छी लड़कियों की तरह वो भी इसे अपने शौहर को ही सब कुछ मानती थी। दिल चाहा कि अभी इससे लाखों सवाल कर डाले, लेकिन खुद पे जब्त किया। अपने अच्छे भाई के मुस्तकबिल के लिए इसे ये कुर्बानी भी देनी पड़ी। इसकी आवाज़ भर आई और हलक से लफ्ज़ निकलने से आ रही थे। जानता था कि इसके घर में सब कुछ ठीक था। मैं यहाँ तुम्हारा रोना धोना सुनने के लिए फ्री नहीं बैठा। अगर कोई बात नहीं है तो मैं कॉल काट देता हूँ। हन्नान के बेगाना लहजा फिर से दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। क्या वो इसकी खैरियत भी पूछ नहीं सकता था? दूसरी जानिब से इस कदर बेमुरव्वती के साथ जहरीले जुमले अदा किए गए कि नैना का दिल टूट गया। कुछ ही दिनों में इस शख्स का इससे दिल भी बढ़ चुका है। वैसे भी खानदानी बीवी के सामने गली मोहल्ले की कचरा इसे कहाँ ही नजर आएगा। नैना कौन सा इसके सर्कल की अमीर लड़की थी। हर महीने पैसे भेजकर अपनी तरफ से क्या फर्ज पूरा कर लेता था। एकदम से बेचैन हुआ। इसके घर जाने पर मालूम हुआ कि वो आजकल तुर्कश के दौरे पर है। चचा अशरफ ने इसे रिपोर्ट दी थी, जल्दी आओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पसंद करूं निकाह के लिए। तुम्हारी शादी की तैयारियां भी तुम सारी मेरे जिम्मे पड़ गई। ये इन लाइन डिज़ाइन जो मुझे समझ नहीं आ रहे। पीछे से आने वाली नस्वानी आवाज़ ने नैना की तवज्जो अचानक से अपनी जानिब मबजूल की। इसे आज इस मुहावरे की असल समझ आई थी कि पैरों तले से ज़मीन खिसकना किसे कहते हैं। इसका दिल धक से रह गया। वो जिस शख्स को अपना दिल दे बैठी थी, वो तो किसी महल का राजकुमार था। इस औरत की आवाज़ को वो अच्छे से पहचान गई। हन्नान शाह ने अपनी माँ को एक नज़र देखा, जो ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाने में लगी हुई थी। नैना का ये इख्तियार बनता था कि वो इससे सवाल करे, इससे पूछे कि बीवी का हक किसको दे रहा है। दिल के रोग सारी जिंदगी भर का शोक बन जाते हैं। वो कैसे कबूल करेगी कि इसके मनपसंद शौहर की कोई दूसरी बीवी आ रही है? क्या वो वाकई इसके लिए मानी नहीं रखती थी? इनकी बातों से ही महसूस हो रहा था कि शादी की तैयारियां कर रहे हैं और वो इन तैयारियों में पेश पेश हैं। क्या सिर्फ चंद रातों की कीमत इसे यहाँ मिलती थी? वो तो बड़े हक से इन पैसों को इस्तेमाल किया करती थी, ये समझ करके कि इसका शौहर महाना नानो नफका बेचता है। जल्दी बोलो, क्या काम है? वो जो सुनना चाह रहा था। ये लड़की बोलने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए अब गुस्सा आने लगा। वही सख्त मोहरी, वही बेमरवती, वही मगरूर रसा लहजा, वही बेनियासी, बगैर कुछ कहे कॉल काटती। वो कैसे ना रोती, वो कैसे ना तड़पती। क्या हुआ, किसका फोन था? वो बताते बताते रुक सा गया, क्योंकि अपनी माँ को अचानक शादी का बताकर दुखी नहीं कर सकता था। नैना सुरमई आंखों वाली लड़की ने अपने आंसुओं को हाथों की पुश्त से रगड़ते हुए, अब मुझे मसीद यहाँ नहीं रहना है। मैं अपना माँ और छोटे का इंतज़ाम खुद से कर लूँगी, भला कोई भी नौकरी करनी पड़े, लेकिन इस शख्स के दरवाजे पर दोबारा नहीं जाऊँगी। ये किराए का घर तो खाली हो सकता था, यहाँ से वो भाग जाना चाहती थी, इसलिए वो इस शख्स से आकर ढूंढ निकालेगा। अगर नैना की इस जिंदगी में थोड़ी सी जगह होती तो वो शख्स अपनी माँ को ज़रूर अपनी शादी के बारे में बताता, लेकिन यहाँ से चले जाना ज़्यादा बेहतर था, ताकि वो खुद इन यादों से निकल सके। मैं तो इनसे पूछ रही हूँ कि किसका फ़ोन था? क्या पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है? तुम्हारा रंग एकदम से उड़ क्यों गया है? हन्नान ने चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट सजाई और सर नफी में हलाया। दिल अंदर से बेचैन हुआ कि वो लड़की फजूल में बैठकर अपने कीमती आंसू बहा रही होगी। एक बार वो इससे सवाल कर लेती तो हन्नान शाह खुशी खुशी सारी वजाहतें देने पर तैयार हो जाता। क्या इतने दिन इसकी मोहब्बत को वो समझ नहीं पाई? सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अब क्या कहती? नैना की ज़ुबान पर कोई लफ्ज़ आने से अनकारी था। वो लड़की इसके मुंह पर कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। नैना को अंदर से लगा जैसे वो मर गई है। इसे अपने अंदर जिंदगी का कोई एहसास दूर दूर तक महसूस नहीं हो रहा था। वो वहां से उठकर लंबे लंबे ढक भरता अपने कमरे में वापस आ रहा था। इसकी करपटी सुलग रही थी। इसकी बीवी इंतहा से ज्यादा बेवकूफ थी। आज तक समझना
आया था कि नैना काफ़ी समझदार लड़की है, लेकिन इसकी इस हरकत ने बता दिया था कि वो नहायत बेवकूफ़ औरत जबड़ा पींचा हुआ था। इसका हर उठता कदम इसके इश्ताल को बयान कर रहा था। चचा अशरफ से वो कई बार पूछ चुका था कि अगर वो नैना के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ठीक से बता दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में वो माँ बेटी छोटे भाई को लेकर कहीं चली गई हैं। इसके बारे में इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। वो तो खुद बहुत परेशान है। उफ, ये लड़की न जाने कहाँ धक्के खा रही होगी। कनपटी सहलाते हुए वो काफी परेशान था। थोड़ी ही देर बाद वो नंबर मिलाकर किसी को सारा डाटा देखने लगा ताकि खोज लगाई जा सके। 24 घंटे के अंदर वो ये पता लगाने में कामयाब हो गया था कि इसकी बीवी अब किधर है, और जल्द ही रूबरू मुलाकात भी होने वाली थी। पाकिस्तान आने के बाद इसकी दुनिया यूं बदल जाएगी, उसे अंदाजा भी नहीं था। अपनी माँ को वो अच्छे से इनकार कर आया था, क्योंकि इसका ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो मज़ीद अपने वालिदैन को धोखा दे। वो कोई दूसरी शादी करने का तमन्ना ही नहीं था। इसके लिए सिर्फ एक मनपसंद बीवी ही काफ़ी थी। हन्नान की माँ पहले काफ़ी गुस्सा भी हुई थी कि इनके बगैर वो कैसे निकाह कर सकता है, लेकिन जब हालात का तकाजा हुआ तो खामोश हो गई। नैना की माँ यूं बगैर बताए छोड़ आने पर काफ़ी नाराज़ हो रही थी। कहने लगी कि शोहर को बगैर वजाहत दिए यूं छोड़ के आ जाना ठीक नहीं था। जैसा भी है, अब इसके सर का साईं था। तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि मुझे यहाँ देखना तुम्हारे लिए हरगिज़ भी खुशगवार साबित नहीं हुआ। अपने शोहर को यूं बगैर बताए छोड़कर आना किस बीवी को जेब देता है। टेबल की दूसरी जानिब आकर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचकर हाथ खुश करता वो इस्तहजाया मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालता गोया हुआ था। जैसे चंद लम्हे लगे थे, खुद को संभालने में यकीन दिलाने लगी कि जिससे भागने को इतना दूर आई थी लेकिन भाग नहीं सकी। दिल की हालत खराब हो रही थी और आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आपका होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। आपको दूसरी बीवी से फुर्सत मिली या नहीं, और आप घर के तमाशा लगाने को आ गए हैं। इसके दिल में जो गुबार था वो जुबान से निकलने लगा। गालबिन जिसका ऑफिस है वो तो बराए मेहरबानी आप फजूल गोई छोड़कर इन्हें बुला दीजिए। कोई मेरी इनके साथ मीटिंग फिक्स है। वो सेल्स गर्ल का काम कर रही है और यहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने को ही आई थी। हनान शाह का अपनी बीवी को इस हुलिये में देखकर खून खोल उठा था। इसकी आधी टी शर्ट से सफ़ेद बाजू छलक रहे थे। इस जालिम से तुम घर को देख, वो सारे नुकसान बोलने लगी थी। अपने दिल की हालत पे काबू पाती वो पल में लहजे को सर्द बना गई थी। जबकि इसकी बात पर मुकाबल खड़े हनान शाह के चेहरे के उजलात एकदम से तन से गए थे, जिनमें सख्ती घुली थी। मेरी बीवी का होने का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। यहाँ मैं तुम्हें कोई वजाहत देने नहीं बल्कि वापस लेने आया हूँ। इस वक्त तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझसे सवाल करती, लेकिन बगैर कोई सवाल किए तुम तो अपनी जगह ऐसे छोड़कर भागी कि मैंने कभी ज़िंदगी में तुम्हें इत्मीनान ना दिया हो। दायां हाथ पैंट की जेब में डालते वो गौर से नैना के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। बायां हाथ खिड़की की चौखट पर जमाए वो शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अगर हनान को इससे मोहब्बत ना होती तो अपनी बीवी को अच्छे से सबक सिखाता। जब ऑफिस का दरवाज़ा बंद था, बाहर कुछ फासले पर खड़े मुख्तार शाह इन दोनों की गुफ्तगू सुन चुके थे। कितने ही पल खामोशी से गुजर गए। माशाल्लाह बेटा, बाप के बगैर अगर निकाह कर लिया था तो घर बसा भी लेना था। कल को मालूम हुआ कि किसी बच्चे को लाकर मेरी गोद में बिठा दो और कहो कि अब्बा हजूर ये तुम्हारे पोते हैं। वो अंदर घुसकर खासे भरम हुए थे। एक अपनी दिली कैफियत अया होने के डर से खामोश था, दूसरा कुछ कहने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा था। नैना को भी खौफ सा आने लगा था। जहाँ ये सुनकर दिल को सुकून पहुंचा कि अभी तक हनान शाह ने कोई शादी नहीं की, वहीं अब फिर से डर पैदा हुआ कि अगर मुख्तार शाह ने इससे कबूल करने से इनकार कर दिया तो हनान क्या करेगा। अगर तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी शादी के मुतल्लक ना बताती तो आज भी मैं अपनी बहू से मिलने से रह जाता।
نینا کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کو اب مزید تکلیف نہیں دیں گے۔ سیاست چھوڑ کر نینا کی رخصتی لیتے وہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اپنی ناراض بیوی کو بھی مختار شاہ نے کسی طرح منا ہی لیا تھا۔ بیٹی کی جو کمی تھی وہ نینا نے آ کر پوری کر دی۔